Hello students, this is our part 2 of our video and our chapter is chapter 6 plant water relation. In the previous video we have studied the parts of plant and its uses. फिर हम लोग ने basic concept पढ़ा था, फिर properties of water and then we have discussed about water absorbing organs, that is the root is the main organ, or we can say it is the primary and most organ, it is the only organ. देन हम लोग ने रूट टिप शोइंग रूट हेयर जोन मेरिस्टेमेटिक रीजन के बारे में पढ़ा है. देन स्ट्रक्चर ऑफ रूट हेयर्स पढ़े थे. देन in this video we are going to start with the water available to roots for absorption. Why the root water is available और क्या प्रोसेस है, we are going to study everything deeply कि कैसे वाटर अवेलेबल होता है रूट्स के लिए, जो रूट्स उसे एब्जॉर्ब कर ले. तो पहला है कि प्लांट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम राइजोस्फीयर. राइजोस्फीयर क्या है? इट इज़ द माइक्रो इन्वायरमेंट सराउंडिंग द रूट्स. रूट्स के सराउंडिंग जो इन्वायरमेंट है, जैसे हमारा कौन सा इन्वायरमेंट है? वी ह्यूमंस आर इन बायोस्फीयर. बायोस्फीयर या फिर सम साइंटिस्ट, कुछ साइंटिस्ट जो है ह्यूमंस को इन देयर ओन स्फीयर भी प्लेस करते हैं, जैसे एंटोरोस्फीयर, बट वी आर इन बायोस्फीयर. वैसे ही प्लांट्स होते हैं राइजोस्फीयर्स में. तो प्लांट्स जब राइजोस्फीयर्स में होते हैं वो इस इन्वायरमेंट में वाटर को कंज्यूम करते हैं जहाँ वो मिट्टी के अंदर रहते हैं. वाटर प्रेजेंट इन द सॉइल अकर्स एज ग्रेविटेशनल वाटर. जो वाटर सॉइल में प्रेजेंट होता है वो ग्रेविटेशनल वाटर है. देन हाइग्रोस्कोपिक वाटर है, कंबाइंड वाटर एंड कैपिलरी वाटर. अब ये सारे टर्म्स को एक एक करके हम लोग देखते हैं. ग्रेविटेशनल वाटर क्या है? ग्रेविटेशनल वाटर इज फ्री वाटर moving through the soil by the force of gravity. It is largely found in the macrospores of soil, and very little gravitational water is available to plant as it drains rapidly down the water table in all except the most compact of soil. We have to remember that gravitational water क्या है? It is the free water which is moving through the soil by the force of gravity. फिर आता है hygroscopic water. What is hygroscopic water? It is a water which absorbed from the atmosphere and held very tightly. It is held मतलब पकड़ा हुआ है, held very tightly by the soil particles so that it is unavailable to plants in amounts sufficient for them to survive. Remember, hygroscopic water क्या है? It is absorbed from the atmosphere, held tightly by the soil particle so that it is unavailable to plants in amount sufficient for them to survive. फिर उसके बाद क्या है? कंबाइंड वाटर. कंबाइंड वाटर क्या होता है? कंबाइंड वाटर इज़ अ टाइप ऑफ वाटर जहाँ पे it is the water chemically combined in the structure of soil mineral. It is a water which is chemically combined in the structure of soil minerals is known as combined water. Okay, after elimination of hygroscopic water by the heating soil to about 150 degrees Celsius, the only water that remains in the hydrate oxides are of aluminium, iron, silicon, etc. So it is a combined water. And the last is the capillary water. Water percolates deep. Water deeply percolate करता है due to the gravity in the soil. Therefore, it is called gravitational water.
अभी हम लोग जो बताए वो ऊपर जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं. This is not available to plants for absorption. Gravitational water is not available for plants to absorption. Fine soil particles absorb water and hold it. This is called hygroscopic water. Then roots cannot absorb it. Water present in the form of hydrated oxides of silicon, aluminium, etc. It is called combined water. Okay. Then it is not available to plants for absorption. ये अवेलेबल नहीं है प्लांट्स के लिए भी for absorption. Some amount of water is held in pores present between the neighboring soil particles. Some amount of water is held in pores present between the neighboring soil particles due to capillarity. This is called capillary water that is available for absorption. तो कौन सा वाटर प्लांट एब्जॉर्ब करता है वो है दिस इज कैपिलरी वाटर and it is available for absorption. It is very important for MCQs. Then absorption of water. Water का absorption by roots from soil. Okay. Now root hair absorbs water by employing 3 physical process. 3 फिजिकल प्रोसेस है. ये प्रोसेस यूज़ करके रूट हेयर वाटर को एब्जॉर्ब करता है. दैट अकर सिक्वेंशली वाइज इम्बिबिशन, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस. क्लियर. एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर 3 मेन फिजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व करता है. पहला है इम्बिबिशन, देन डिफ्यूजन, देन ऑस्मोसिस. सो अभी हम लोग ये तीनों प्रोसेस के बारे में वन बाय वन स्टडी करेंगे. तो पहला है फर्स्ट प्रोसेस इज इम्बिबिशन. व्हाट इज इम्बिबिशन? इम्बिबिशन क्या होता है? दिस टर्म इज रियली न्यू फॉर यू स्टूडेंट्स. Imbibition is swelling up of hydrophilic colloids due to adsorption of water. Imbibition क्या है? Swelling up of hydrophilic colloids due to adsorption of water. एक होता है absorption, एक होता है adsorption. Okay? एक होता है absorption, एक होता है adsorption. तो what is this adsorption? This is a difference between a absorption and adsorption. Absorption में क्या होता है? One substance is taken up into the physical structure of the other substance, while in adsorption a substance or energy is attracted to a surface of another matter. A substance or energy is attracted. It is attracted to a surface of another matter. Then adsorbent and absorbent are involved in this process, and adsorption में adsorbate और adsorbent are involved in this process. तो ये है difference between absorption and adsorption. Coming back to our main topic, यहाँ पे imbibition is swelling up of hydrophilic colloids due to adsorption of water. Substance that absorb water या फिर liquid is called as ambibent, and water and liquid that gets ambibed is called ambibade. ambibent है क्या? कोई भी सब्सटेंस जो एब्जॉर्ब कर रहा है, जो क्या कर रहा है? वाटर को या एनर्जी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है
टू अ सरफेस ऑफ अनदर मैटर, अट्रैक्शन कर रहा है वो कोई मैटर, तो हम लोग उसको बोलेंगे एम्बीबेंट या एंड जो लिक्विड या वाटर जो एम्बीबेड हो रहा है उसे बोलते हैं एम्बीबेट। ये है इम्बिशन, imbibition. And then the root hair cell wall is made up of pectin compounds and cellulose which are hydrophilic colloids. जो रूट हेयर सेल्स है, रूट के हेयर सेल है, इट इज़ मेड अप ऑफ पैक्टीन। हम लोग ने ये पहले पढ़े थे। तो रूट हेयर सेल वॉल is made up of pectin compound and cellulose which are hydrophilic colloids. Okay, pectin and cellulose are hydrophilic colloid. Pectin compounds and cellulose are hydrophilic colloids. Then during imbibition, water molecules get tightly absorbed without the formation of the solution. जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं वो टाइटली एड्जॉर्ब करते हैं, वो टाइटली खुद को एड्जॉर्ब कर रहे हैं विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन. देन imbibition continues till the equilibrium is reached. कब तक imbibition कंटिन्यू होता है? जब तक इक्विलिब्रियम ना पहुंच रहा है वो. In other words, water moves along the concentration gradient. Clear? Then imbibition is significant in soaking of seeds, swelling up of dried resins, kinging of flour, एक्सेट्रा. इम्बिबिशन का काम हम लोग कहाँ कहाँ देख रहे हैं? सोकिंग अप ऑफ सीड्स, स्वेलिंग अप ऑफ ड्राइड रेजिन्स, देन किंडिंग ऑफ फ्लोर एक्सेट्रा. ओके, किंडिंग जो हम लोग आटा गूंदते हैं तो आटे में क्या हो रहा है? इम्बिबिशन हो रहा है. देन रेजिन्स जो स्वेल होती है, ड्राइड रेजिन, दैट इज़ ऑल्सो प्रोसेस ऑफ इम्बिबिशन. एंड सोकिंग ऑफ सीड्स को जो हम लोग सोक करके रखते हैं, पानी में भिगा के रखते हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ प्रोसेस ऑफ इम्बिबिशन. सो हियर वी कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ इम्बिबिशन. देन ये हम लोग पढ़ चुके. देन द सेकेंड प्रोसेस इज डिफ्यूजन. नाउ व्हाट इज डिफ्यूजन? डिफ्यूजन मीन्स टू डिस्पर्स, फैल जाना. ओके, डिफ्यूजन कैन बी डिफाइंड एज द मूवमेंट ऑफ आयॉन्स, एटम्स या फिर मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस. डिफ्यूजन कैन बी डिफाइंड एज द मूवमेंट ऑफ आयॉन्स या एटम्स या मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस from the region of their higher concentration to the region of their lower concentration. मतलब उनके हाई कॉन्सेंट्रेशन से लेके लो कॉन्सेंट्रेशन का जो रीजन है उसके बीच होता है डिफ्यूजन. डिफ्यूजन में क्या होता है? मूवमेंट ऑफ आयॉन्स हो रहे हैं. आयॉन बोले या फिर एटम्स बोले या मॉलिक्यूल्स बोले, दिस ऑल आर सेम. इनका मूवमेंट हो रहा है from the region of higher concentration to the region of lower concentration. अगर high है एक जगह concentration और दूसरी जगह concentration low है तो higher concentration से lower concentration के पास वो ions या molecules या atoms travel करेंगे और वो लोग equilibrium maintain करेंगे and they both will become equal. The movement is due to kinetic energy of the molecules. ये movement क्यों है? ये movement है due to kinetic energy. Kinetic energy के वजह से इनमें movement हो रहा है. Clear? Then diffusion continues till an equilibrium is reached. Diffusion कब तक continue होता है? जब तक equilibrium नहीं होता, दोनों साइड का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल नहीं होता,
तब तक डिफ्यूजन कंटिन्यू होता रहेगा। जब तक हायर कॉन्सेंट्रेशन वाला लोअर कॉन्सेंट्रेशन तक के जा रहा है, जब तक दोनों जगह हाई एंड लो का ये डिफरेंस है, ये हाई एंड लो का डिफरेंस जब ख़त्म नहीं होता, ये हाई और लो कॉन्सेंट्रेशन इक्वल नहीं होता, इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं करता, तब तक इक्विलिब्रियम, ये जो प्रोसेस है डिफ्यूजन का, वो कंटिन्यू होता है। ओके, thus water passes into the cell by diffusion through a freely permeable cell wall. जो water है वो pass होता है in the cell. As we have studied before, cell wall is freely permeable. तो वो पूरा उसका सेल वॉल परमिएबल है, तो वो क्या होता है, उसमें पूरे में वो सेल को अंदर आने देता, वाटर को अंदर आने देता है। So diffusion continues till an equilibrium is reached. Thus water passes into the cell by diffusion through a freely permeable cell wall. जैसे हम लोग ने पहले ही पढ़ा था, सेल वॉल जो है वो परमिएबल होती है। परमिएबल मतलब कि वो अपने अंदर वाटर को, लिक्विड को या गैसेस को अलाउ करती है कि उसके अंदर वो पास हो सके। Then water is now at the interface of cell wall and plasma membrane. This is the process of diffusion. Diffusion means to disperse. Diffusion can be defined as the movement of ions, atoms, molecules of a substance from the region of their higher concentration to the region of their lower concentration. ये है डिफ्यूजन का इमेज। यहाँ पे है हायर कॉन्सेंट्रेशन वाले एटम्स और यहाँ पे है लो कॉन्सेंट्रेशन वाले। तो ये जो हाई कॉन्सेंट्रेशन वाले हैं वो यहाँ पे ट्रैवल हो गए। ओके, जब तक यहाँ के एटम्स और यहाँ के एटम्स इक्वल नहीं हो जाते। ओके, दिस इज़ व्हाट डिफ्यूजन इज़। यू हैव टू रिमेंबर दिस कि हायर कॉन्सेंट्रेशन वाले एटम्स जब लोअर कॉन्सेंट्रेशन के एटम्स के पास ट्रैवल करते हैं और ये लोग इक्वल जब हो जाएंगे, या फिर ये इक्वल का क्या नाम है, इक्विलिब्रियम मेंटेन करेंगे, तब कौन सा प्रोसेस होता है, तब होता है प्रोसेस विच इज़ वी आर स्टार्टिंग टुडे, दैट इज़ डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन, इसमें कौन सा मूवमेंट है, ये मूवमेंट होता है ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। हम लोग यहाँ पढ़े ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। फिर ये डिफ्यूजन कंटिन्यूज टिल एन इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। दस वाटर पासेस इनटू द सेल, वाटर सेल के अंदर पास होता है बाय डिफ्यूजन थ्रू अ फ्रीली परमिएबल सेल वॉल। देन दिस वाटर इज़ नाउ, अब वाटर कहाँ है, इंटरफेस पे है ऑफ सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये हो गया अपना डिफ्यूजन का प्रोसेस। नाउ और भी चीज़ें पढ़नी है डिफ्यूजन में, जैसे कि डिफ्यूजन जो है इट रिजल्ट्स इन द डिफ्यूजन प्रेशर। डिफ्यूजन प्रेशर जैसे डीपी बोलते हैं, which is directly proportional to the diffusion is directly proportional to the number of diffusing particles। ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि डिफ्यूजन रिजल्ट होता है इन द डिफ्यूजन प्रेशर। डिफ्यूजन प्रेशर का शॉर्ट फॉर्म यूज़ होगा, डिफ्यूजन प्रेशर का शॉर्ट फॉर्म है डीपी, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है to the number of diffusing particles. Diffusion result in the diffusion pressure, that is dP, which is directly proportional to the number of diffusing particles. Okay, then diffusion pressure of pure solvent, that is pure water, is always more than the diffusion pressure of solvent in a solution। डिफ्यूजन प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का या फिर प्योर वाटर का हमेशा ज़्यादा होता है
then the diffusion pressure of solvent in a solution. सॉल्वेंट जो दूसरे सॉल्वेंट होते हैं वो लोगों का डिफ्यूजन प्रेशर कम होता है और प्योर सॉल्वेंट या प्योर वाटर का डिफ्यूजन प्रेशर ज़्यादा होता है. एंड दिस डिफ्यूजन प्रेशर इज़ ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. dp is directly proportional to the नंबर ऑफ डिफ्यूजिंग पार्टिकल्स, मतलब कितने पार्टिकल्स हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में ट्रैवल किए हैं उस पर डिपेंड करता है. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ओके, टू द नंबर ऑफ डिफ्यूजिंग पार्टिकल्स. ये डिपेंड करता है, ये है डिफ्यूजन रिजल्ट. देन ये जो प्योर सॉल्वेंट का डीपी होता है वो हमेशा ज़्यादा होता है than the diffusion pressure of solvent in a solution. Then we will erase this. Then the difference in the diffusion pressure of pure solvent and the solvent in a solution is called diffusion pressure deficit, that is DPD, or it is called as suction pressure, that is SP. The term was coined by B.S. Mayer in 1938. Nowadays, term was potential and is used for DPD. In colonial language, the term DPD is actually the thirst of the cell which it absorbs water from the surrounding. This is something which is called as general knowledge. So what is DPD? DPD क्या है, ये क्वेश्चंस में आंसर्स पूछता है 1 मार्क के लिए. इट इज़ अ डिफरेंस. डिफरेंस मतलब माइनस में डिफरेंस हो रहा है. डिफ्यूजन in the diffusion pressure of pure solvent and the solvent in a solution, and it is called as diffusion pressure deficit. This is called as diffusion pressure deficit, or it is called as diffusion pressure deficit, or it is called as suction pressure. Okay, and this term was coined by B.S. Meyer in 1938. 1938 में B.S. Meyer ने इसको निकाला था, ये टर्म को, DPD और SP वाले को. ओके, nowadays टर्म वॉज पोटेंशियल. अभी के टाइम पे ये टर्म जो है वो पोटेंशियल है एंड इट इज़ यूज्ड फॉर DPD. ओके, एंड इन कोलोकियल लैंग्वेज में टर्म DPD का मतलब होता है थर्स्ट ऑफ अ सेल. सेल का थर्स्ट मतलब सेल जो कंज्यूम कर रहा है ना अपने अंदर लिक्विड को या सॉल्वेंट को. सो इट इज़ टर्म्ड एज थर्स्ट ऑफ अ सेल with which it absorbs water from the surrounding. Okay, so this is about the DPD. The difference in the diffusion pressure of pure solvent and solvent in a solution is called DPD, that is diffusion pressure deficit, or suction pressure, that is SP. And this term was coined by B.S. Meyer in 1938. Nowadays, this term water potential is used for DPD, and in colloquial language ये term का मतलब होता है thirst of a cell. क्यों है? क्योंकि it absorbs water from the surrounding. Then water around cell has no more diffusion pressure than cell sap. जो वाटर सेल वॉल के अराउंड होता है उसके पास मोर डिफ्यूजन होता है, डिफ्यूजन प्रेशर होता है देन द सेल सेप के कंपैरिजन में. ओके, एंड ड्यू टू दिस वाटर मूव्स इन अ सेल बाय डिफ्यूजन. इस वजह से वाटर मूव करता है इन अ सेल, उसके प्रोसेस है डिफ्यूजन. And diffusion is significant in plants in the absorption of water, minerals,
conduction of water against the gravity, exchange of gases, and transport and distribution of food. Diffusion is important in all this process. या क्या क्या प्रोसेस है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, मिनरल्स, कंडक्शन ऑफ वाटर अगेंस्ट द ग्रेविटी, एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड ट्रांसपोर्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड. तो ये सारी चीज़ें के लिए डिफ्यूजन इम्पॉर्टेंट है. देन हमारा डिफ्यूजन पीछे ख़त्म हो जाता है. अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस के बारे में ये टर्म से हम लोग थोड़े से नोन है बिकॉज ऑस्मोसिस के बारे में हम लोग 11th स्टैंडर्ड में भी पढ़े हैं. सो ऑस्मोसिस क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस by which water enters into the cytoplasm of the root hair cells. ओके ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे वाटर एंटर करता है इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द रूट हेयर सेल. रूट के हेयर के सेल में. अब रूट हेयर सेल में भी बहुत सारे पार्ट्स थे. सेल वॉल था, सेल मेम्ब्रेन था, वैक्यूल्स था. तो रूट हेयर सेल के साइटोप्लाज्म में जब वाटर एंटर कर रहा है, इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. हम लोग ने पहले पढ़ा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो सिलेक्टिवली परमिएबल है. तो ऑस्मोसिस भी एक स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन है. डिफ्यूजन कहाँ हो रहा है? सेल वॉल में हो रहा है जहाँ पे वो पूरी तरीके से परमिएबल है. बट ऑस्मोसिस वहाँ हो रहा है. इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. मतलब ऐसी पर मेम्ब्रेन जो सेमी परमिएबल है, जो आधी परमिएबल है. ओके देन द साइटोप्लाज्म ऑफ रूट हेयर सेल. साइटोप्लाज्म ऑफ रूट हेयर सेल कंटेन्स मिनरल्स, शुगर्स एक्सेट्रा. ये सारी चीज़ें वो कंटेन करता है. ओके कौन कौन सी चीज़ें? मिनरल्स, ओके minerals, sugar, etc. In other words, solution inside the cell. Solution जो सेल के अंदर है is more concentrated. वो ज़्यादा concentrated है और stronger है than outside the cell जो कि weaker है, मतलब weak है. This is important. In other words we can say जो solution inside the cell है, सेल के अंदर वाला solution is more concentrated या फिर more stronger than the solution in the outer cell, that is it is weaker. Okay, therefore solvent from weaker solution enters into cytoplasm. जो solvent जो वीकर सोल्यूशन से रहता है वो साइटोप्लाज्म में एंटर करता है. दैट इज़ टू स्ट्रॉन्गर सोल्यूशन ऑफ अ सेल थ्रू अ सेमी परमिएबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन. दिस माइग्रेशन ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस. मतलब अब क्या हो रहा है? हम लोग ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पहले पढ़े थे कि वो सिलेक्टिवली परमिएबल है, दैट इज़ इट इज़ सेमी परमिएबल. तो ये जो वीकर सोल्यूशन है जो कि बाहर है आउटसाइड द सेल, जो वीकर सोल्यूशन है वो एंटर करता है साइटोप्लाज्म में. साइटोप्लाज्म में जब वो एंटर करेगा तो वो स्ट्रॉन्गर सोल्यूशन बन जाएगा एंड इट इज़ थ्रू अ सेमी परमिएबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू वो एंटर करता है. ओके दिस माइग्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, ये जो माइग्रेशन है सॉल्वेंट का फ्रॉम वीकर टू स्ट्रॉन्गर इज कॉल्ड ऑस्मोसिस. दिस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच वाटर एंटर इनटू साइटोप्लाज्म ऑफ अ रूट हेयर सेल.
और यहाँ पे क्या होता है, वीकर सोल्यूशन स्ट्रॉन्गर सोल्यूशन के अंदर एंट्री करता है थ्रू अ सेमी परमिएबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, and this migration of solvent from weaker to stronger is called osmosis. This is important. Then water at the interface of cell wall and plasma membrane enter into the cytoplasm of the root hair cell due to osmosis. Diffusion में क्या हुआ था, water interface पे था. अब क्या हो रहा है, जो water interface पे था सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, अब वो वाटर एंटर करेगा इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द रूट हेयर सेल ड्यू टू द ऑस्मोसिस. डिफ्यूजन पे वाटर इंटरफेस में सिर्फ था और अब वाटर एंटर करता है इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द रूट हेयर सेल ड्यू टू ऑस्मोसिस. ये था अपना प्रोसेस. नाउ with the respect to the concentration and osmotic migration, ये अगर अब जो ऑस्मोटिक माइग्रेशन है और सोल्यूशन है जो कि वीक सोल्यूशन है, स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन है, ये सब बेस पे विथ ऑल दिस रिस्पेक्ट दिस ऑस्मोसिस 3 टाइप्स के होते हैं ऑन द बेस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एंड ऑस्मोटिक माइग्रेशन. On the base of concentration and osmotic migration solution, 3 types of solution are recognized. पहला है hypotonic. Hypotonic is also called as weak solution or strong solvent, and it is having low osmotic pressure. इसका जो osmotic pressure है वो काफ़ी low है. Then second is hypertonic. Hypertonic is strong solution or weak solvent. Solvent weak है but solution strong है, and it is having high osmotic concentration. Okay. Then third is isotonic. It is having such a concentration of solution where there is neither gain nor loss of water. या तो ना ही तो गेन हो रहा है वाटर का, ना ही तो लॉस हो रहा है वाटर का इन एन ऑस्मोटिक सिस्टम. इन अदर वर्ड्स कॉन्सेंट्रेशन आउटसाइड एंड इनसाइड द सेल इज सेम. मतलब ये इक्वल है, ये कोई हाई एंड वीक एंड स्ट्रॉन्ग नहीं है, दिस इज़ इक्वल, सेम है यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन. द फर्स्ट था हाइपोटोनिक, सेकेंड वॉज हाइपरटोनिक, थर्ड वॉज आइसोटोनिक. हाइपो मीन्स होता है लो, लोअर, तो उससे वी कैन रिमेंबर दैट वीक सोल्यूशन और स्ट्रॉन्ग सॉल्वेंट. देन सेकेंड इज हाइपरटोनिक. हाइपर इज समथिंग विच वी इंडिकेट फॉर स्ट्रॉन्ग, तो हम लोग उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन और वीक सॉल्वेंट हैविंग हाई ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन. फिर थर्ड होता है आइसोटोनिक. इट इज़ हैविंग concentration outside and inside the cell is same. Then coming to the difference between osmosis and diffusion, it involves, in osmosis it involves movement of solvent molecules, and in diffusion it involves movement of solute molecules. Okay, this is important. there solvent है, यहाँ पे solute है. देन ऑस्मोसिस में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट टू हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट. मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, डिफ्यूजन में क्या होता है, मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट. Then in osmosis it occurs only across a semi-permeable membrane, and in diffusion it does not require semi-permeable membrane. Then osmosis का example है shrinking of potato slice when kept in concentrated sucrose solution. And is diffusion में example है spreading of ink when a drop of it is put in a glass of water. Okay, so ये है diffusion and osmosis का definition. Now we will stop video here only and we will further continue in the next video. Thank you students.